Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to IceMake Limited Quarterly Vision Dialogue for 2000 FY Q3 FY26. IceMake is a leading provider of industrial and commercial refrigeration solutions. Can I request the members to mute your system for now? We'll allow you to ask questions little later. So we appreciate the presence of investors, analysts, partners, and stakeholders joining us today. This platform is designed to provide transparent engagement, structured insights into performance, and clarity for our forward strategy. Before we begin, please note that today's discussion may contain forward-looking statements subject to risks and uncertainties. From the company, I welcome our CMD, Mr. Chandkampi Patel, uh, and CEO, Chief Executive Officer, Mr. M. Srinivasa Reddy, and Strategy Head, Mr. Nikhil Bhatt, and CFO, Mr. Ankit Patel, and also CS, Mr. Mandar Desai. They will take us through the financial performance and uh, overview and outlook for the day. Now, I invite our Chairman and Managing Director, Mr. Chamkampi Patel, to share his opening remarks. Over to you, sir. Thank you and a warm welcome all. IceMac continue to grow on its strong foundation of innovation, creativity, and long-term value creation. While the current operating environment may be dynamic, our focus remains on strengthening performance, accelerating market expansion, and further strengthening operational discipline. I know I now request Mr. Reddy to share his thoughts on business performance and future outlook. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is an exciting phase for IceMake Refrigeration Limited as we strengthen our market presence and customer engagement. Q3 FY26 demonstrates sustained revenue momentum, planned expansion in new markets, and stable operations across industrial refrigeration, cold chain, and commercial cooling segments. With a diverse product portfolio and expanding reach, we will remain focused on disciplined execution and sustainable growth. Our priorities include strengthening regional penetration, operational efficiency, and aligning systems and processes to support the next phase of growth and scale. While finance costs and depreciation remain elevated due to expansion initiatives, we are consciously working towards operational optimization and margin stability. With a few introduction, I now invite our CFO, Mr. Ankit Patel, to take you through the detailed financial performance. Thank you, Reddy sir. Good afternoon, everyone. I'll give a brief financial overview. On a standalone basis, revenue from operation for Q3 FY26 stood at 153.21 crore, with total income at 153.48 crore. The company reported a profit before tax rupees 1.5 crore and profit after tax at 1.11 crore for the quarter. During the first 9 months of FY26, standalone revenue from operation reached at 413.76 crore, while profit before tax stood at 1.68 crore, and profit after tax stood at 1.17 crore. On a consolidated basis, Q3 FY26 revenue stood at 153.36 crore, reflecting a robust 39% year-on-year growth. Profit before tax stood at 1.9 crore and profit after tax at 1.45 crore. For 9 months ended 31st December 2025, revenue reached at 412.35 crore,
The demand remained healthy across industrial refrigeration, cold chain, HoReCa, and commercial cooling segment during the quarter. Input costs and finance expense continue to exert pressure on margin. During the year, the company commenced operation majorly in two new verticals. In the initial phase, the focus is on establishing market presence and building customer relationship with margins calibrated accordingly. These entry stage, the strategy has resulted in some pressure on overall margins, which remains within management's plan range. As volume scale up and operating efficiencies improve, margins in these new verticals are expected to move closer to prevailing industry levels over the medium term. I now invite Mr. Nikhil Bhatt to share our strategic roadmap. Thank you. Thank you, Ankit. During the quarters, we have continued our journey in a better way, as well as we have strengthened and expanded the retail presence through the various outlets or exhibitions related to HoReCa as well as the food processing industries. We have showcased our product portfolio at major industries platform, including the HoReCa as Bangalore as well as Khatye Khorak in Gandhinagar, and also for the dairy IDA exhibitions held at New Delhi. Our strategic priorities focus on three pillars mainly: the retail footprints expansion and last mile connectivity, strengthening presence in HoReCa, pharmaceutical and food processing industries, enhancing manufacturing efficiency and product innovations. We are positioning Outback to capture long-term opportunities in India's expanding cold chain ecosystems. And looking to the numbers we have in order on hand of about 180 plus crores, we are hopeful that we will definitely achieve our goal at the end of this financial year. Thank you. All right. So thank you so much, Nikhil ji, and the entire management team. Now we can open this floor for the question and answer session. If you would like to ask a question, please raise your hand and share your name and organization in the chat box and send it directly to me. We will then unmute your line so you may ask a question. We'll allow initially two questions and then you can come back to the queue again. Thank you so much. All right, I've got the first question, sir. Uh, Congratulations on the good set of numbers. Revenue has grown strongly year on year. How sustainable is the current quarterly run rate going forward? This is the question from Hitesh Shah. Yeah, please, management, over to management, sir. हमारे पूरे साल का गाइडेंस हमने दिया हुआ है और नॉर्मल हमारी जो इंडस्ट्री का सेल्स मिक्स और पैटर्न रहता है जनरली Q1, 2 एंड 3 में समवेयर अराउंड 0.2 मतलब 20% और लास्ट ईयर में अराउंड 35 to 40% का ओवरऑल बिजनेस होता है. सिमिलर लाइन से ही हमने प्रोजेक्ट किया था और उसी लाइन पे चल रहा है. सो मतलब वी आर कॉन्फिडेंट कि ये साल में हमने जो गाइडेंस दिया हुआ है हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे. हेलो, इज इट ऑडिबल? आवाज आ रही है? या निखिल, यस यस अंकित जी, आवाज आ रही है. ओके, सो दूसरा क्वेश्चन जो है तेज पटेल से है. आई विल जस्ट अनम्यूट हिज लाइन. Yeah, Yeah. Am I audible? Hello. yeah, you are. Hello. Yes, yes. Go ahead. आवाज आ रही है? Request if you can ask a question in Hindi. हाँ जी. No problem. जी. Thank you so much, chance देने के लिए, and congratulations to the entire management of the IceMake. Wonderful results. Sir, couple of questions. First, if you would help me understand
ये क्वार्टर में हमारे बिजनेस स्प्लिट क्या है, स्पेशली आई वांट टू नो अपने जो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और कंटिन्यूस पैनल से इस बार कितना कंट्रीब्यूशन आया है फॉर दिस क्वार्टर एंड 9 मंथ्स ऑल्सो, इफ यू कुड क्यूमुलेटिवली से मी कि कमर्शियल फ्रीजर और कंटिन्यूस पैनल से कितना कंट्रीब्यूशन आया है। मतलब टोटल आपको स्पेसिफिक 9 मंथ्स का आपको ब्रेकअप दे तो कंटिन्यूअस पैनल में समवेयर अराउंड 56 करोड़ का टोटल सेल हुआ है टू दिसंबर, और कॉमर्शियल फ्रीजर्स है उसमें अराउंड 34 करोड़ प्लस का हुआ है इन 9 मंथ्स। और टोटल 9 मंथ्स का मैं आपको स्प्लिट बताऊं तो कोल्ड रूम का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 47%, इंडस्ट्रियल का 3% है, ट्रेडिशनल कॉमर्शियल वर्टिकल है उसका 12% है, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन समवेयर अराउंड 5%, अमोनिया और प्रोजेक्ट दोनों को मिलाए तो अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस पैनल है उसका रफली अराउंड 13-14% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, और फ्रीजर्स है न्यू कॉमर्शियल वर्टिकल है उसका अराउंड 8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। गॉट इट, गॉट इट। और सर ये जो हमारा जो 56 करोड़ कंटिन्यूस पैनल पे कितना एबिटा बना होगा या फिर एबिटा लॉस किया होगा, या और कमर्शियल पे जो 34 करोड़ का सेल किया है उस पे 9 मंथ्स में कितना एबिटा या किया होगा अपन ने? हमें स्पेसिफिक ये भी पूरा ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट का एक पहले गाइडेंस भी दिया हुआ था कंटिन्यूअस पैनल में समवेयर अराउंड 80, क्योंकि अभी डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन है तो ऑन होलिस्टिक बेसिस के ऊपर 80-82 करोड़ भी उसका ब्रेक इवन आता है, और सीएफ का समवेयर अराउंड 50 और 55 करोड़ ऑड है। तो 9 मंथ्स के लिए ये वाला स्पेसिफिक वर्किंग आई एम श्योर दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स तक तो इस साल पहुंच ही जाएंगे। और ये सर आप डेप्री और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों निकाल के बोल रहे हो ना मेरे को? नहीं, मैंने ओवरऑल टोटल अच्छा, व्यू पे मैंने बताया हुआ है, तो EBITDA ठीक है। तो पॉजिटिव ही रहेगा अभी। गॉट इट। तो इन शॉर्ट 9 मंथ्स में तो अपन पॉजिटिव नहीं है, आई मीन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन जैसा है, बट ऑन अ फुल ईयर बेसिस सिंगल डिजिट एबिटा मार्जिन जितना हो जाएगा। हाँ, यस पॉसिबल, यस। गॉट इट, गॉट इट। एंड सर 2 more questions on this new business। अगर आप लेट्स से गोइंग नेक्स्ट ईयर और 2 फाइनेंशियल ईयर के बाद एट लेट्स से फुल यूटिलाइजेशन और एक सस्टेनेबल प्राइस पे दोनों बिजनेस में कितना मार्जिन कर पाएंगे, लेट्स से कमर्शियल में कितना कर पाएंगे, कंटिन्यूस में कितना कर पाएंगे एट अ फुल यूटिलाइजेशन एंड अ सस्टेनेबल प्राइस, और दोनों में सर वर्किंग कैपिटल डेज कितना होगा दोनों बिजनेस के? वैसे थोड़ा अभी एंट्री लेवल वाले मार्जिन के ऊपर भी थोड़ा सा इनपुट दे दूं, क्योंकि दिस इज वेरी फर्स्ट ईयर, तो एंट्री और स्पेसिफिक प्राइस स्ट्रेटेजी और मार्केट को टेस्ट करने के लिए हमने एक अलग स्ट्रेटेजी रखी हुई है। हमने कमर्शियल फ्रीजर में स्पेसिफिकली वेंडर से नेगोशिएट करके एक बेटर प्राइसिंग लेवल भी ले आए हैं। नेक्स्ट वाले Q4 में थोड़े से सेल्स प्राइस को भी हमने इंक्रीज किया हुआ है, तो इट इज नॉट कि ये वाले जो मार्जिन है इससे बेटर परफॉर्मेंस हमारे न्यू वाले वर्टिकल में हो नहीं सकता, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली इससे इम्प्रूव ही होगा। ये इनिशियल लेवल पे भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है, कस्टमर फीडबैक क्या आता है, कुछ छोटी छोटी चीजों को रिफाइन करके थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करे, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करे, तो ये वाली चीजें स्ट्रेटेजिक डिसीजन के तहत हमने ये वाली पॉलिसी रखी हुई है। थोड़े से प्राइजेस के ऊपर वर्किंग ऑलरेडी शुरू हुआ है, कुछ चीजों का इम्पैक्ट Q3 में भी आया है, Q4 में थोड़ा और ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो हमने EBITDA का जो आपको रेंज दिया हुआ है 9.5 10.5 वाला, ये दोनों वर्टिकल एट फुल कैपेसिटी में ये वाले EBITDA को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारा कोई वैसा प्लानिंग नहीं है कि EBITDA को इससे कॉम्प्रेस करके आगे जाके बिजनेस को बढ़ाए। इसके लिए स्पेसिफिकली नेक्स्ट ईयर में क्या हमें रोड मैप करना है उसके ऊपर भी हमारा इंटरनल वर्किंग शुरू हो चुका है। परफेक्ट सर, आई गेट योर पॉइंट। ऑफ कोर्स इससे तो अच्छे मार्जिन बनेंगे, बिकॉज आई गेट दैट पॉइंट। बट मेरा खाली यही जानना था कि आप जब बोलते हो सर 9.5-10% कंप्लीमेंट करेंगे, मतलब मैक्स मार्जिन ये दोनों बिजनेस में 10% तक ही अपन सोच रहे हैं या 10, 13, 14 तक भी जा सकते हैं? मेरे को थोड़ा नहीं, वो व्यू पॉइंट जानना था। ये ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि ये मास प्रोडक्शन प्रोडक्ट है। अगर आप ओके, मार्जिन ज्यादा लेने जाएंगे तो आप वॉल्यूम नहीं कर पाएंगे। तो परफेक्ट। ये मार्जिन भी इस प्रोडक्ट की जो नेचर है, सप्लाई के बाद की लायबिलिटी, वॉल्यूम बढ़ाने में कोई चैलेंज नहीं है। तो यही मार्जिन पे हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो करते हैं, तो हमें भी वही ब्रैकेट में काम करेंगे। अच्छा मार्जिन
नहीं लेंगे, वो लालच रहेगी, लेकिन ऐसा मौका मार्केट मुझे नहीं लगता है कोई शॉर्टेज Perfect. क्राइसिस या सडनली कोई डिमांड बन जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो ऐसे Got it. कुछ दिख नहीं रहा है। Got it. One more question on this is सर कि ये दोनों में वर्किंग कैपिटल डेज कितना होगा? आई गेस अपने लेगेसी बिजनेस से थोड़ा अलग है बिकॉज दोनों में इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। उस हिसाब से आप थोड़ा दोनों ये बिजनेस में कमर्शियल फ्रीजर्स और कंटिन्यूस पैनल में कितना वर्किंग कैपिटल डेज होगा दोनों में? वैसे थोड़ा सा ये बिजनेस वैसे मास प्रोडक्शन है तो सीजनलिटी मतलब H1 और H2 क्वार्टरली भी देखें तो उसको फ्लक्चुएटिंग करना रहेगा, क्योंकि कमर्शियल फ्रीजर प्रोडक्ट ऐसी है कि डीलर डेज की हम बात करें तो अराउंड 30-35 डेज का हम क्रेडिट देते हैं। स्पेसिफिक ये वाली कमर्शियल फ्रीजर की हम बात करें तो क्रेडिट डेज में तो उतना ही होता है, लेकिन सीजन ऑफ सीजन में भी 60% और 100% और कई बार डबल शिफ्ट में भी वर्किंग होती है। तो जब सीजन का टाइम होता है तो हमारे पास लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है। उनका मतलब टर्न अराउंड देखे तो Q4 में तो वर्किंग कैपिटल काफी पॉजिटिव हो जाती है, बट वही चीज हम अगर Q2 में देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है। बट Yes. ओवरऑल हम देखें तो रॉ मटेरियल डेटर्स और वेंडर्स का पेमेंट सब मिला के देखेंगे तो अराउंड 50 डेज या 45 डेज के आसपास की एक साइकिल बैठ जाएगी पूरे साल की। आई एम टॉकिंग अबाउट ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू आवर ओल्ड बिजनेस। सिमिलर रहेगी, बट ये बिट्स एंड पीसेस में रहेगी। आप मार्च में देखेंगे समझ तो ये गया। काफी अच्छी दिखेगी। अगर आप सितंबर एंडिंग में देखेंगे तो आपको शायद ऐसा भी लगता है कि 80 डेज के आसपास भी है, क्योंकि इन्वेंटरी में हमें काफी चीजें होल्ड करनी होती है। तो वो भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक कॉल रहेगा कि भाई पूरे साल का ये प्लान है तो इतनी इन्वेंटरी हमें कैरी करके चलनी है, क्योंकि प्रोडक्शन को कैपेसिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते। तो 60 डेज का कंजर्वेटिवली ऑन अ सेफर साइड पूरे साल का हम वर्किंग कैपिटल साइकिल पकड़ सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। एंड सर अभी थोड़ा जैसे रॉ मटेरियल कॉपर साइड भी थोड़े प्राइसेस बढ़ गए हैं, या सो दैट इज ऑफ कोर्स प्रॉब्ली अ रॉ मटेरियल फॉर अस अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। तो उस पे हमको कोई इम्पैक्ट है? पहला क्वेश्चन ये। और सेकंड, रॉ मटेरियल पे जैसे हमारे जो कंटिन्यूस पैनल वाला बिजनेस है राइट, उसमें हम प्री कलर कोटेड स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। अभी लास्ट एटलीस्ट 1-2 महीने से उसमें भी 10-15% की प्राइस इंक्रीज आया है। तो उस पे आप थोड़ा व्यू पॉइंट देखो, क्या हमको ये इम्पेक्ट करेगा? हमारे पास पुराने प्राइस की इन्वेंट्री पड़ी है, उस साइड ऑर्डर बुक किया है, थोड़ा इस बार और थोड़ी पिक्चर दे सकेंगे कि क्या इम्पेक्ट करेगा कि नहीं हमें वो कंटिन्यूस पैनल वाले बिजनेस में? और कॉपर ओवरऑल फॉर अस, इज इट इम्पैक्टिंग अस आवर मार्जिन्स एज ऑफ नाउ? हमारे पहले तो टोटल परचेज का मैं आपको जीआई और कॉपर का कितना हमारा यूज होता है, तो आउट ऑफ कॉपर हम अराउंड टोटल परचेज का अराउंड 5% के आसपास का परचेज करते हैं। तो डेफिनेटली 5% का जो मटेरियल है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने ये कोल्ड रूम में भी जो सिस्टम होती है उसका स्पेसिफिकली हमने Q3 में भी प्राइस हाइक किया हुआ था, तो नॉट श्योर कि एग्जैक्ट Q3 में उसका 100% इम्पैक्ट आएगा, लेकिन Q4 में तो डेफिनेटली पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट आएगा। हमने कमर्शियल फ्रीजर्स में भी जो हमारे चेस्ट फ्रीजर्स है उसकी प्राइजेस हमने अभी चेंज की हुई है। काउंटर साइड इनपुट कॉस्ट के ऊपर भी हमारा वर्किंग चल रहा है। हमने अच्छे से नेगोशिएट करके वेंडर से थोड़ा मार्जिन भी मतलब लैंडिंग कॉस्ट हमने कम करवाई हुई है। तो नॉट एवरी टाइम सेलिंग प्राइस बढ़ा के ही, क्योंकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग चीजें होती है, फाइन ट्यूनिंग टीथिंग इश्यूज भी है जिसके ऊपर वर्कआउट करके कुछ पोर्शन में हम डिजाइनिंग है, इंटरनल R&D है, कॉस्ट को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जाके थोड़ा सा सेल्स प्राइस, थोड़ा सा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके हम कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। परफेक्ट। एंड सर ऑन कंटिन्यूस पैनल साइड आप थोड़ा उस साइड थोड़ा व्यू पॉइंट दे सको, बिकॉज स्टेनलेस स्टील मतलब स्टील ओवरऑल, ये खाली लास्ट क्वेश्चन है जस्ट अ फॉलो ऑन। ये स्टेनलेस स्टील साइड मतलब थोड़ा कंटिन्यूस पैनल साइड थोड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? बिकॉज स्टील इज अ रीजन मेजर रॉ मटेरियल फॉर अस देयर। एक्चुअली हमारा जो कंटिन्यूस पैनल है उसमें स्टेनलेस स्टील नहीं लगता है, जीआई प्रीपेंटेड शीट यूज होता है, उसमें प्राइस का इतना फर्क नहीं। तो अच्छा ओके, उसमें प्राइस। हाँ, ओके, गॉट इट। ठीक है, आई हैव मोर क्वेश्चंस, एक बार आई विल जस्ट जॉइन बैक इन। थैंक यू। Hello.
Hello, am I audible? हाँ, ये आवाज आ रही है। Sir, thank you so much for the opportunity. सर मुझे ये जानना है कि आपका जो EPS है 9 मंथ्स का वो डिग्रोथ कैसे हुआ है, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ा है तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हमने लास्ट ईयर में जो स्पेसिफिक 2 वर्टिकल के नए कैपेक्स किए हुए थे और उसके लिए हमने लोन भी ली हुई थी, तो लास्ट ईयर में आई थिंक Q4 में ही उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आया था। वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है ये वाले साल में, तो डेफिनेटली उसका फुल ईयर का कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन का, टर्म लोन के इंटरेस्ट का, सबका इम्पैक्ट ये वाले साल में तीनों क्वार्टर में आया हुआ है। और रेवेन्यू की हम बात करें तो जनरली थोड़ा सा सीजनल इम्पैक्ट है। Q4 में ज़्यादातर हमारी सेल्स बढ़ जाती है, तो उसी की तहत हमारा ये वाला जो साल है उसमें थोड़ा सा डेप्रिसिएशन और स्पेसिफिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पैट कॉम्प्रेस हुआ है। सर ये कितने टाइम तक रहेगा, कितने क्वार्टर्स तक रहेगा? 4 क्वार्टर्स तक हमें लगता है इसका इम्पैक्ट रहेगा, जब तक स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारे बढ़ जाएंगे तो। और लोन का रीपेमेंट वैसे 5 इयर्स की हमने लोन ली हुई है, तो और वो रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से है, तो जैसे जैसे रीपेमेंट होता जाएगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होती जाएगी। WDV डेप्रिसिएशन है तो ईयर ऑन ईयर वो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी कम होती जाएगी। तो ये और 4 क्वार्टर चलेगा सर? 4 क्वार्टर के बाद सडनली नहीं होगा, लेकिन 4 क्वार्टर में इम्प्रूव करके जो हमने आपको कमिट किया है वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि 4th क्वार्टर के बाद में जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर है वो इतना स्केल नहीं होता है ना, वो क्वार्टर का बिजनेस भी थोड़ा सा कम होता है। राइट। और सर ये 2 नए, हाँ जी बोलिए सर। ये वाले बिजनेस को हम स्पेसिफिकली मार्जिन में EBITDA मार्जिन को टैप कर रहे हैं, क्योंकि हर साइकिल ऐसी होती है कि कुछ पीरियड के बाद हमारा कैपेक्स वाला फेज आता है, तो WDV डेप्रिसिएशन रहता है, थोड़ा सा लोन के ऊपर हमने फोकस करके ये वाले ग्रोथ लाए हुए हैं। तो एक पीरियड के बाद ये वाला फेज आएगा और उसमें हमारे मार्जिन थोड़े से डिप्लेट होते हैं, बट EBITDA मार्जिन को हम फोकस करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड हम उसको ही बेंचमार्क लेके आगे का ग्रोथ प्लान करते हैं। अच्छा, और सर आपका तकरीबन 480 करोड़ था मार्च, एंड ऑफ मार्च 2025 फुल ईयर सेल्स। सो अभी FY27 का कितना सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? FY27 मतलब ये वाले साल की बात करो, इसके नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर सर, नेक्स्ट ईयर। ये वाले साल का तो जो हमने गाइडेंस दिया हुआ है, उसके बाद में समवेयर अराउंड मे बी 800-825 के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टॉप लाइन रहेगा FY27 में। यस। और सर FY20 का क्या गाइडेंस दिया है सर? उसके बाद के साल में हमने 1000 करोड़ का जो प्लान दिया हुआ है, उसी के तहत 1000 करोड़ हमारा उसके नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में टच हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं, और सर FY26 का क्या गाइडेंस दिया है? मैंने नहीं फॉलो किया अभी तक। अच्छा, ये वाले साल में हमने 650 का गाइडेंस दिया हुआ है और वो हम अचीव करेंगे? हाँ यस। अच्छा, और सर ये 2 नए वर्टिकल जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं कंपनी में, वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए? हाँ, मतलब हाउ विल इट ऐड टू आवर टॉप लाइन? दोनों का क्या कनेक्शन? हमने टिल 9 महीने की हम बात करें तो 56 करोड़ का हमारा कंटिन्यूअस पैनल का कंट्रीब्यूशन है और कॉमर्शियल फ्रीजर का अराउंड 35 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, और पूरे साल में वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का 140 या 150 के आसपास का उनका टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाले फाइनेंशियल ईयर में, दोनों मिला के। और ये सर कब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1 साल हो गया। CP को थोड़ा ज़्यादा हो गया, लास्ट ईयर दिसंबर से शुरू कर लिया था और ईयर जनवरी बोल सकते, जनवरी Yeah. 2025 सर। Yeah, Mehul, can I request you to come? Yeah. Okay.
sir. All right. Thank you so much, sir, and all the best. Yeah. Yeah. So before we get Bhargav, I have a question from Ruchika Moody. Her question is outlook on input cost. When is the pressure expected to recede? Also, current debt levels, if the management can share, and is it expected to increase further in near term? So this is a question from Ruchika. Sir, please, over to you. हमने ये जो दो नए वर्टिकल में एंट्री की हुई है, तो हमने एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मार्केट में एंट्री के लिए और मार्केट को टैप करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्राइसिंग की भी रखी हुई है। तो मतलब हमें हमारी प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, तो हमने उसमें थोड़े से प्राइस बढ़ाने का मतलब प्राइस बढ़ाए हुए हैं। Q4 में उसका इम्पैक्ट आएगा। वेंडर से नेगोशिएट करके थोड़ा सा बेटर इनपुट कॉस्ट को भी रिड्यूस किया हुआ है, और कंटिन्यूअस पैनल में भी काफ़ी अच्छे से हम स्केल अप कर पाए हैं। ये वाले क्वार्टर में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम Q4 हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। Okay, thank you, Ankit ji. Now we have Bhargav ji. Sir, you can unmute and please go ahead with your question. Yeah, good afternoon team and congratulations for a good set of numbers. सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम 1000 को रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहे हैं 2 साल में, तो ये जो कंटिन्यूस पैनल और कमर्शियल फ्रीजर जो नए वर्टिकल्स है उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन आ सकता है वो जब 1000 करोड़ हो जाएगा 2 साल में? तो एक मिनट हो, देख के बता। Somewhere around 325, around 350 CR. अच्छा, 350 CR के आसपास आ सकता है, राइट। और ये जो करंट जो सेटअप है उसमें हम 350 करोड़ कर सकते हैं कि हमें और केपेक्स करना पड़ेगा? हम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्स्ट फेज में हमने कुछ प्रोडक्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के लिए छोड़ा था, तो वो करेंगे। तो मुझे लगता है 15-20 करोड़ से ज्यादा नहीं। बट इंस्टॉल कैपेसिटी की हम बात करें तो दोनों की इंस्टॉल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू 400 करोड़ तो एग्जिस्टिंग भी है, तो एग्जिस्टिंग वाली कैपेसिटी में हम नहीं पहुंच पाएंगे, वैसा सिनारियो नहीं रहेगा। कुछ चीजें जो साहब ने बोली कि हमने रखी हुई थी, तो वो मार्जिन वाली प्रोडक्ट है, वहां पे कैपेक्स करेंगे तो जो नॉर्मल मार्जिन है उससे थोड़ा सा प्रीमियम पे हमारा स्पेसिफिक वो वाली कैटेगरी में बिजनेस हो पाएगा, इसलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट के फोकस के तहत हम उसको भी टैप कर रहे हैं। और सर ये जो 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू आएगा उसमें हम 10% इबिटा मार्जिन तो आइडियली अज्यूम कर ही सकते हैं ना, विच इज सिमिलर टू जो हम बेस बिजनेस में करते थे, क्योंकि तब तक तो यूटिलाइजेशन लेवल्स भी अच्छे हो जाएंगे और आपका जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में 2 प्रोडक्ट्स का वो भी आ जाएगा। 1000 तक हमने 9.5 10.5 वाली रेंज को हम टैप करते हुए ही चलेंगे, तो ये वाले फेयरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्जिन हमारे रहेंगे। और जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट अभी जो 10 और 17 करोड़ है पिछले 4 क्वार्टर का, वो अगले 2 साल में कम हो जाएगा, वो मानना सही रहेगा कि गलत होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। स्पेसिफिक कैपेक्स को हमें फाइनेंस करने के लिए अभी एक और लोन का प्रोविजन हमने किया हुआ है, इट्स अ ब्रिज लोन, वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कैरी करके नहीं चलेंगे, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट भी इस ये वाला जो है इससे कम हो जाएगा। और लास्टली सर, अभी अगले 2 साल का केपेक्स कितना लग रहा है? कोई केपेक्स है अगले 2 साल? कैपेक्स के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हमने स्पेसिफिक उसको फ्रीज नहीं किया है कि कौन से मोड के थ्रू कैपेक्स आएगा, लेकिन कैपेक्स के लिए हमें भी थोड़ा, हमारे पास भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी रहती है, तो अभी बताना मुश्किल है कैपेक्स। अच्छा, 4th क्वार्टर में आप बता पाएंगे कि क्या प्लान है 2 साल? जी ठीक है, ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन ऑल द वे। थैंक यू। Thank you, Bhargav ji. I have two questions on my chat box, and it is for the Mr. Srinivas.
How does the company differentiate itself from competitors in a price-sensitive market? That is one question. The second is, what is the export outlook and contribution from international markets? And there is one more question, which is, how will retail brand outlet expansion contribute to revenue and profitability? So these are three questions to our CEO. Over to you, sir. Thank you for asking these questions. I think the first question is, how do we compare ourselves with the competitors? Yes. I'm actually very proud to say that IceMake has a better advantage than some of the competitors. In one, this the range, the diversified product portfolio the company has caters to entire consumption segments. So that's one positive. Second positive is I think company has already invested in the manufacturing capabilities to beat all the government regulations, whether the QCO or BE and all of that. So that's definitely a positive compared to some of the competitors, of course. So what needs to be done here is, of course, the next phase of growth in terms of the channel expansion and strengthening the operational efficiency. These two are the levers that we want to look at to improve the sustained growth momentum. So the important thing is, I think companies 30 years in the industry, especially focused in the refrigeration alone. The core of this company is refrigeration, so unlike the competitors, so that gives them the leverage to innovate and launch products which are core in the refrigeration itself. So hope I have answered this question. What is the second question? Yeah, thank you, sir. So the next question from the analyst is, what is the export outlook and contribution from international markets? Any view on that? Look, 9 महीने में हमने somewhere around 13.5 to around 14 crore का एक्सपोर्ट हमने किया हुआ है. Okay. All right. So thank you, Ankit ji. And there is one more question which is related to how will retail brand outlet expansion contribute to revenue and profitability? Yeah, so currently, whatever we are expanding into the retail brand center, first thing is that is not the company's liability, that is our dealer and liability. That's a dealer's shop. That gives the brand actual, customer can come to the shop and they can have a touch and feel of the products. Dealer also in this product specific, dealers are usually multi-brand dealers. If we are having a brand shop of any particular company, they can, demonstrate that quality and the value for money for the product very easily. So secondary sale would be jumping in a big numbers. So that is the main goal behind the retail brand shop. Yeah. So if any other question regarding that, you can ask. All right, sir. Thank you so much. And now we have question from Dhananjay. Dhananjay, if you can unmute and ask your question. Dhananjay ji. हेलो, Yeah. Please go ahead. मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए. सर ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने आपकी कंपनी में कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट देखी थी कि अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया गया था, तो क्या मैनेजमेंट का ये मतलब सोच है कि हो सकता है आने के दिनों में फंड रेज किया जाए? ये वाली पॉसिबिलिटीज के ऊपर अभी इस टाइम पे हम एग्जैक्ट कोई कमेंट नहीं कर सकते. ऑथराइज कैपिटल हमने इंक्रीज किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई कॉन्क्रीट फाइनल डिसीजन आया नहीं है. तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम उसके ऊपर प्रॉपर डिस्क्लोजर या कमेंट कर पाएंगे. ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हमारी जो 2 सब्सिडरी है, एक भारत रेफ्रिजरेशन और एक आइस बेस्ड, यहाँ से बिजनेस कब तक शुरू होगी सर? रेवेन्यू कब तक मतलब एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू कब से जनरेट होगी, ये मैं जानना चाह रहा था. भारत रेफ्रिजरेशंस तो हमने
2016 से एक्वायर की हुई है, वो हमारी होल्डी ऑन सब्सिडरी है। तो ये वाले क्वार्टर में हमने 10 करोड़ का सेल वहां से किया हुआ है और काफी अच्छे पेस और रिथम पे वो चल रही है। आइस बेस्ड हमारा रिसेंटली जो लास्ट में ओपन की हुई सब्सिडरी है, वो एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। वहाँ ईस्ट का मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे बिजनेस एटमॉस्फेयर कैसा है उसको हम टैप कर रहे हैं। फिर जब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वहाँ पे भी बड़ा कैपेक्स करके स्केल बढ़ाने का हमारा प्लानिंग है। तो भारत जो सब्सिडरी है वो काफी अच्छे से चल रही है और आइस बेस्ड में भी हमें फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है। सर इसको ये दोनों सब्सिडी से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू तक किया जा सकता है वहाँ पे मार्केट का, जो मतलब आप लोग ने आज तक जो स्टडी किया हो वहाँ पे? देखो, भारत रेफ्रिजरेशन में हमने लास्ट ईयर में अराउंड 34-35 करोड़ का टॉप लाइन हमने क्लॉक किया था। जब हमने उसको टेक ओवर किया था तो उस टाइम पे हार्डली 2 करोड़ का उसका टॉप लाइन था। और जिस हिसाब से कोल्ड चेन मार्केट अभी ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हमें लगता है देयर इज वेरी एम्पल स्कोप ऑफ ग्रोथ ओवर देयर। हमारे बिजनेस में ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी सब्सटेंशियली मैटर करती है। तो आज जो हम क्विक कॉमर्स का बिजनेस कर पा रहे हैं, हमारी जो साउथ की सब्सिडरी है, ईस्ट में भी जो हमने सब्सिडरी ओपन की है, वहां से भी उनका डिस्पैच हो रहा है। हम प्राइस में रहे हैं कि हम जियोग्राफिकली एक्सपांड कर रहे हैं और एक स्केल, सर्टेन स्केल के बाद हम इस साइड में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट करेंगे। साउथ में हमने ऑलरेडी लैंड ली हुई है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा पॉजिटिवली शिफ्टिंग भी हो सकता है। तो हम वहां पे थोड़ी सी और प्रोडक्ट रेंज हम बढ़ाएंगे। तो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस भी काफी अच्छे से बाकी की सब्सिडरी में अभी परफॉर्म हो रहा है। थैंक यू धनंजय। ओके सर, ओके। धनंजय, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप दोबारा आएंगे तो थोड़ा देर के बाद हम आपको, क्योंकि 2-3 लोग और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो यू कम बैक टू द क्यू। एंड इससे पहले कि हम श्री हर्षा और तेज पटेल के पास जाएं, एक मैसेज में क्वेश्चन आया हुआ है वैभवी का। व्हाट विल बी द एबिटा टू OCF conversion over next 2 years? This is the question from her. मतलब the same guidance what we used to give, somewhere around 9.5 to 10.5% हम till 1000 करोड़ की टॉप लाइन टैप कर रहे हैं। Okay. All right. That will be fairly ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। चर्चित मालू का क्वेश्चन है, what will be the EBITDA M going forward in FY26 and FY27? I think we've already answered, but you can still. I think करंट फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो हमें लगता है शायद समवेयर अराउंड 7.5 to 8% की रेंज विल बी पॉसिबल। हमें जो लग रहा है Q4 का बिजनेस भी आउटलुक अच्छा है, तो EBITDA इंप्रूव होगा, बट समवेयर 7.5 to 8% के आसपास ये वाले साल में टच करे, वैसा हमें लग रहा है। ठीक है अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ we will take question from Harsha and then we'll go to Khurshid ji and then we'll take from Tej Patel. So Harsh ji, please unmute yourself and ask. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, यस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरा क्वेश्चन हमारे 2 नए प्रोडक्ट लाइन के रिलेटेड है, कंटिन्यूस पफ पैनल और कमर्शियल फ्रीजर्स के रिलेटेड। तो सर ये हमारा पहला ईयर ऑफ ऑपरेशन है ये बिजनेस में, तो व्हाट इज़ द हमारा फीडबैक फर्स्ट ईयर में कैसा है कस्टमर्स के पास से, एंड हमें क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम अगले साल 800-850 करोड़ का रेवेन्यू कर पाएंगे ओवरऑल होल बिजनेस बेस पे? मैं दोनों बिजनेस को स्प्लिट करके आपको बताता हूँ। सीपी जो हम कंटिन्यूस पफ पैनल बोलते हैं, एक्चुअली इसमें 30-35 साल से रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में है। तो ये प्रोडक्ट शुरू करते ही थोड़ा सा एंट्री के लिए आपको प्राइस बेनिफिट देना पड़े, इसी वजह से आपको EBITDA और मार्जिन भी कम दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन था, जो हम लोग ओवरलोडेड थे, और ये पीक सीजन है कोल्ड चेन का।
कोल्ड चेन के बाद में भी ये प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेच सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने पहले भी गाइडलाइन दिया था कि हम कंटिन्यूस पॉप पैनल एक बल्कि प्रोडक्ट है, जियोग्राफिकल एक लिमिट से बाहर जाके आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी करना पड़ेगा। तब हम हमेशा बोलते थे कि ये फैक्ट्री चालू करने के 1 साल बाद हम सोच सकते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी जो होप थी उसी अकॉर्डिंग हम लोग अचीव कर पाए। कस्टमर फीडबैक भी अच्छा है। वैसे हम लोग रेफ्रिजरेशन के लोग हैं, इंसुलेशन हमारी की कोर एक्सपर्टीज है, तो लोगों की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हम अच्छे से जानते हैं, तो एप्लीकेशन को अच्छे से हमने सेटिस्फाइड किया। दूसरा, हम कमर्शियल फ्रीजर जो चेस्ट फ्रीजर विजी कूलर है, जो रिटेल आउटलेट पे आइसक्रीम बेवरेजेस में होते हैं, वो प्रोडक्ट टिकट साइज छोटा है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू सेल होता है। वहाँ भी सेम आइसमैक की अपनी रिटेल ब्रांड है, यूजर आइसमैक ब्रांड की प्रोडक्ट और कई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको क्वालिटी और सर्विस में एक अच्छा एक्सपीरियंस पहले का भी था। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छे से हम लोग एस्टाब्लिश कर पाए। हमारे कई एक्सक्लूसिव शोरूम सेल्स पॉइंट भी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी तभी आपसे जुड़ती है जब उसको रिटेल ब्रांड की एक रेपुटेशन होती है, तो उसको अपना बिजनेस मिलने की होप दिखती है। दोनों ही बिजनेस में हमें लगता है कि हमने आगे जो 850 या 1000 करोड़ की टॉप लाइन में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, शायद उतना उतना उनसे ज्यादा भी कर पाएंगे हम लोग, थोड़ा और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्ट्रेच करेंगे तो। All right, thank you, sir. ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। अभी करंटली हमारा जो डेट है, इसके बढ़ते नेक्स्ट ईयर हमारा पीक डेट क्या हो सकता है सर, या ये हमारा पीक डेट है और इसके बाद रीपेमेंट हुई? ये वाला हमारा पिक डेट है। इसमें थोड़ा सा मतलब 105 या 109 के आसपास का एज ऑफ नाउ का डेट है टोटल लॉन्ग टर्म, बट गोइंग फॉरवर्ड ये वाला डेट रिड्यूस होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। All right, thank you so much, Mr. Shah. Now we will take a question from Khurshid ji, and if you can unmute, and then we'll answer the question that has come from Bababi. All right, Khurshid ji, and please unmute, and you can ask your question. Khurshid ji, are you there? Khurshid, unmute. Yeah. आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है, तो इफ यू कैन मैसेज मी, आई आस्क तेज पटेल जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। Yeah, perfect. Thank you so much for the opportunity again. I am audible, right? Yeah, you are, yes. हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, इफ यू कुड हेल्प मी अंडरस्टैंड, अभी टोटल अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कितने, और उसमें से जो एक्सक्लूसिव अपने लिए सेल करते हैं वो कितने हो गए? मतलब टोटल हम कॉमर्शियल फ्रीजर्स की बात करें तो समवेयर अराउंड 120 प्लस हमारे एग्जिस्टिंग डीलर्स है। हम डीलर नेटवर्क को स्ट्रेंथनिंग करने, मतलब इट इज इन अवर फोकस गोइंग फॉरवर्ड, वी आर आल्सो एक्सपांडिंग दिस। ये वाले नंबर्स और भी बढ़ेंगे फ्यूचर में। हमारे पास एक्सक्लूसिव 16 ब्रांड शॉप है जो एक्सक्लूसिवली आइसमेक के फ्रीजर्स को ही बेचेंगे या आइसमेक के प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे। फर्दर मतलब और 5 ब्रांड शॉप है जो हमारे अभी कंसिडरेशन में है, जो गोइंग फॉरवर्ड कुछ समय में और ओपन होंगी। सर, आई हैव सीन दैट अभी थोड़े वीक्स पहले अपन शायद साउथ में भी एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट खोला है। मतलब ये थोड़ा रिस्पॉन्स कैसे है सर साउथ में, और ये जो अपने 120 डीलर नेटवर्क है उसमें से हाउ इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम साउथ? So for response from South region is extremely well. Many we already tied up with. There's a Jersey Milk, Amilma ice cream, and Scoop ice cream, and so we are onboarding few
good key players and also dealers. So the brand shop we opened in South India was a specific Mangalore region, and dealer is pretty strong in the local area, and he already split his business into more like a 60-40 and 60 for ice mix. So we are in the coming years we are expecting more dealers to go more aggressive with the ice mix. 120 Got it. dealers, we are already having more than 60 to 70% dealers whose billing is like quite regular, twice in a month or something like that. So we are keep increasing that trust between dealers and company. We are keep solving the problems in a on a principal level and everything. So we are expecting this numbers will by this time we both are talking. There are multiple area we are tapping right now, and it's almost every day new dealer we are appointing, and we are expecting Got it. west region we already dominated very well, and north and south will be definitely uh, in eye of target, and will keep expanding in the regions. Thank you. Perfect. So 120 में से most how much would be in west, मतलब एक geographical उसका split बता सकते हो क्या सर प्लीज? वेस्ट में must be 50 to 55%, साउथ में there are Yeah. 20%, and north में again more 20%. So 50, 20, 70, 90, and 10 in a east region, because east region we've not tapped yet because it's quite far from the our factory. Transportation costs are very high, and it's a quite tricky market. We want to tap first these three markets thoroughly, and then go to Got uh, it. Got it. Guwahati. Perfect. Thank you. One more question is, sir, continuous panel, what I understand is one of the major market for us. है जो चंद्रकांत सर said कि infra is a big market for us, जो PEB वाले हमसे लेते हैं, right? So is there a risk कि आज जो बड़े PEB players है, that one player जो backward integrate कर रहा है, मतलब वो खुद के puff panel बना रहा है. Is there a risk कि आगे जाके जो मे बी बड़े प्लेयर है वो खुद के puff panel बना ले और मे बी थोड़ा फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव वुड नॉट बी गुड फॉर अस, तो वो रिस्क आपको लगता है, मतलब उस पर थोड़ा आपका मेरे को चाहिए था सर. एक्चुअली हमारा कंटिन्यूस पॉप पैनल प्रोडक्ट है ज्यादातर तो कोल्ड चेन में, क्योंकि हम लोग कोल्ड चेन में स्ट्रांग है. अभी जो पॉप पैनल मैन्युफैक्चरर है उसमें से कम प्लेयर है जो कोल्ड चेन मार्केट को समझते हैं और उसमें फोकस करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो बात बोला वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन सभी पीईबी सॉल्यूशन प्रोवाइडर की इतना बड़ा स्केल और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंटिन्यूस पैनल खुद बना पाए. और डे बाय डे जो कन्वेंशनल से पीईबी का कन्वर्जन रेशियो जो है इंडस्ट्री या वेयर हाउस कमर्शियल बिल्डिंग में वो ज्यादा है. तो ये मार्केट हमारे जैसे लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना अपॉर्चुनिटी देगा. ओके गॉट इट मेक सेंस. Thank you. और सर इन okay, I will just join back again. Okay. All right. We have a couple of more questions. One is from Dhananjay ji. I'll just come back to you. आप रुकिए. खुर्शीद जी का क्वेश्चन है, your operating margins are compressed. Your expenses are having a toll on the bottom line. From when do you think your bottom line will be more aggressive than the top line? So this is the question from Khurshid ji. He was not able to unmute himself. हमारी मतलब जो भी इंडस्ट्री में कैपेक्स होता है, तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर या इमीडिएट ईयर से उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन या इनपुट शुरू नहीं होता है. तो इट्स अ साइकिल. आज हम इन्वेस्ट करेंगे, 2 या 3 साल बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तब जाके हमारा जो बॉटम लाइन है वो काफी अच्छा और स्ट्रांग दिखेगा. और हो सकता है 4-5 साल के बाद फिर से ऐसा कोई फेज आए. बट मीनवाइल अभी हमारी जो टॉप लाइन है वो 500 करोड़ के नजदीक वाली टॉप लाइन है. एट अ सर्टेन स्केल, सर्टेन साइज, ये वाला जो कैपेक्स है वो उतना स्ट्रांगली हमारे बॉटम लाइन को इम्पैक्ट नहीं करेगा. तो इट्स अ वे फॉरवर्ड. ये वन ऑफ ईयर है, और आगे हम जिस हिसाब से कैपेक्स करेंगे हमारा टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों साइजेबल रहेगा. तो इतना ज्यादा
परसेंटेज कॉम्प्रेशन फ्यूचर में हमें नहीं लग रहा है। ये वाला हमारा सब्सटेंशियल ईयर है। और गोइंग फॉरवर्ड पैट की हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर से हमारा जो पैट है वो थोड़ा सा एग्रेसिवली ग्रो होना शुरू होगा। बट हम जो इबिडा रेंज आपको बता रहे हैं 9.5 10.5 वाली, वो वाली रेंज में हम प्रॉफिट को और एक्सपांड होता हुआ कमिंग 3 to 4 years में देख रहे हैं। ओके अंकित जी, एक और क्वेश्चन है उनका। एनी होप्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही इज आस्किंग, एंड वेदर curving the cost in general are in plan. In which vertical? He's saying that any hopes of backward integration or curbing the cost in general. So any backward integration of the company planning, you could share if there are any plans. नहीं, ऐसा खास कुछ कर नहीं पाएंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, क्योंकि फिर हमारा एक फोकस होता है ना, आपकी कोर एक्सपर्टीज है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हमारा फोकस और जो एनर्जी है वो वहाँ चली जाती है। तो हम लोग लेकिन एक स्केल के बेनिफिट आने से आपको बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं भी करोगे तो आप कई सारा बेनिफिट स्केल के बेस पे ले आएंगे। एक आध साल बाद हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन का स्केल बनेगा तब सोच सकते हैं। नियर फ्यूचर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फोकस नहीं है अगले एक आध साल तक। ओके, सो उनका ये पूछ रहे थे कर्विंग द कॉस्ट इन जनरल, मतलब आप कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं क्या? कॉस्ट कम करने के लिए या तो सेल्स प्राइस बढ़ाना और स्केल बढ़ाना, दो मार्जिन बढ़ाने के कई और ऑप्शन भी है। हम लोग ये दोनों ही प्रोडक्ट थे, उसमें हम लोग नए प्लेयर थे तो एक प्रमोशन इनिशियल बेनिफिट कस्टमर को देना पड़ता है, इसी वजह से थोड़े से कॉस्ट वहाँ हमने पास किए थे। और एक स्केल भी है क्योंकि अभी जो हम लोग टॉप लाइन आपको बता रहे हैं वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 50% तक नहीं है। तो जब आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा 60-70%, तो अपने आप एक एस्टेब्लिश है, आपके रेफरेंस क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेपुटेशन और ट्रस्ट बनता है ना, तो लोग आपको कभी कभी प्रीमियम भी देते हैं या मार्केट प्राइस से आपको उतना लोअर प्राइस में बेचना नहीं पड़ेगा। तो मार्जिन बढ़ाने की और दो ऑप्शन है और हम फोकस करेंगे वही दोनों ऑप्शन पे हमारा मार्जिन बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। एक क्वेश्चन जो है उनका एक और है, कह रहे हैं कि यू आर एक्सटेंडिंग इन ऑल 4 रीजन, सभी रीजन्स में आप एक्सपांड कर रहे हैं। एनी थॉट्स यू इंटेंड टू ओपन एन ऑफिस इन द मोस्ट हॉटेस्ट स्टेट राजस्थान? राजस्थान में आपका कोई प्लान है कि वहाँ पर कोई ऑफिस या इस तरह से, मतलब हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस दैट मार्केट? एक्चुअली हमारा ऑफिस राजस्थान में करने से कोई और बेनिफिट नहीं आता है। राजस्थान में हमारा रिपोर्टिंग ऑफिस है क्योंकि हम लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, तो स्पेयर और ये करना पड़ता है। कोई शोरूम नहीं है। शोरूम अब हमारे सीएफ प्रोडक्ट में हमारे जो डीलर्स है वो लोग शोकेस करते हैं। तो राजस्थान में उदयपुर जयपुर दोनों ही जगह पर है हमारे लिए हमारी प्रोडक्ट शोकेस। और राजस्थान और गुजरात बिल्कुल छटा हुआ बॉर्डर है, तो राजस्थान की ज़्यादातर बाइंग है बिल्कुल नॉर्थ को छोड़े, तो गुजरात बिल्कुल कंफर्टेबल है क्योंकि गुजरात में और भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो लोग राजस्थान के लोगों को गुजरात आने में दिक्कत नहीं होती है। हम ऑफिस का सोचे तो हम कलकत्ता या तो दिल्ली कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक डिस्टेंस भी है, जो आप ऑफिस सेटअप करके एक थोड़ा लोकलाइज होंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा। थैंक यू सर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हमें 1 घंटा तो शायद हो गया है। एक क्वेश्चन जो है इज अराउंड मिस्टर रेड्डी, ही इज सेइंग कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर becoming the CEO of the company. With your expertise, where do you think IceMake would be in 3 years? तो सर आपसे क्वेश्चन है आपका, हमने जो इंटरव्यू किया था उसमें वी हैव एड्रेस दैट, बट अगेन इफ यू कैन जस्ट enlighten the investors on this. Where do you see the company in 3 years, next 3 years? So, well, I've said the company has very
good number of innate strengths which we want to leverage to grow this company into next orbit of growth. If I have to just answer you a very specific question that where I want to see the next 3 years, we want to make this company number one in all the products and solutions that we operate. That's one. And secondly, we want to make this company the most admired in the space that we work on the next 3 to 5 years time. एब्सोल्युटली सर। तो मिस्टर श्रीनिवास जी का एक इंटरव्यू हमने डाला हुआ है, आप पूरी तरह से देख सकते हैं, उसमें पूरा एकदम विजन मिशन सब कुछ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है सर धनंजय यादव जी की तरफ से है, और वो इस फॉर यू ओनली। ब्लू स्टार से आप आए हैं, तो हाउ ये कैसे हेल्प करेगा बिजनेस को, एक तो आपने एड्रेस कर दिया। दूसरा उनका ये है, कैन वी एक्सपेक्ट मार्जिन एक्सपांशन आफ्टर रीचिंग और सरपासिंग द 1000 करोड़ टॉप लाइन दैट वी प्लान टू डू बाय FY28? तो कुछ मार्जिन एक्सपांशन की बात पूछ रहे हैं धनंजय। 1000 करोड़ की टॉप लाइन तक हमने ये मार्जिन को स्टेबल रख के ग्रो करे, वो हमने फोकस में रखा है। आफ्टर रीचिंग एट 1000 करोड़ वी विल इवैल्यूएट के आगे का वे फॉरवर्ड कैसा है, वहाँ पे एग्रेसिवली एक्सपांड करने के साथ साथ मार्जिन को एक्सपांड करने की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, उस टाइम पे हम उसका ड्यू कॉल लेंगे। इट्स टू अर्ली स्टेज, अभी हम हाफ द स्टेज है, उस टाइम पे हम पहुंचेंगे तो डेफिनेटली इसको भी ड्यू कंसिडरेशन में रखेंगे, क्योंकि अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि मार्जिन को ही ग्रोथ फैक्टर हम बनाए। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को ऑर्गेनिकली एक रीजनेबल पेस के साथ बढ़ाए, ये हमारे कंसिडरेशन में रहेगा। Thank you, Ankit ji. So I think we'll just take last question, and I'll just unmute Tej Patel again. Tej ji, you can ask your question. Please unmute. And Yes, thank you so much. I will just take much short time. Just two questions from my end. Question number one is, I'm really sorry, Ankit ji, आपको फिर से परेशान करोगे क्वेश्चन पे। In this financial year, we are targeting to close at about 8% at console level, and the new business would break even this financial year at 35-40% utilization. That is question number one. Question number two is, if you could help me understand, sir, continuous panel का ये financial year end पे क्या order book था, और FG का inventory कितना होगा at this financial year? I mean not this financial year, I mean the 9 months. वैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी? Yes, this console level पे sir we are targeting to close at about 8%, right, in this financial year EBITDA. हाँ, इट्स समवेयर अराउंड 8% हमें लग रहा है कि मतलब वी विल क्लोज एट करंट फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा है कि हमारी इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी, स्पेसिफिक फिनिश गुड्स आप मांग रहे हैं ना कि कितनी रहेगी। वैसे कंटिन्यूअस पैनल में मैन्युफैक्चरिंग उतना चैलेंज नहीं है, मतलब हम प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं जिनके पैसे हमारे पास आ गए हैं, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट सेल्स में बोल रहा हूँ, जिनकी अलग टर्म्स और कंडीशन होती है। अगर कोई डायरेक्ट ऑर्डर हमें मिलता है कंटिन्यूअस पैनल का, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में हमें उतनी ज़्यादा टाइम लगते नहीं है, तो फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी हम बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हमारी ऑर्डर बुकिंग होती है उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम स्पेसिफिक इन्वेंटरी का लेवल कैरी करके चलते हैं। एटलीस्ट 20 दिन या 1 महीने का प्रोडक्शन हमारा डिले ना हो, उतनी इन्वेंटरी हम कैरी करके चलते हैं, क्योंकि ये वाले साल में भी हमारा नियर अबाउट 90-100 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन का कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन इंपैक्टफुल ना हो उतनी हम रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी कैरी करके चलेंगे। फिनिश गुड्स में उतनी ज्यादा इन्वेंटरी सीपी में नहीं रहेगी। परफेक्ट। एंड जस्ट कंफर्म, 44 करोड़ हमारा कंट्रीब्यूशन होगा नए बिजनेस से ये क्वार्टर, राइट? स्पेसिफिक Q4 की बात करते हैं, नहीं Q3 में बोलना था। Q3 में हाँ, नियर अबाउट 44-45 के आसपास कंट्रीब्यूशन। Perfect. Thank you so much, and all the best for this financial in the upcoming years. Thank you so much. Thank you. all right, so looks like our Q&A session is showing better returns than the Nifty 50. So demand is very high. So let's take one more question, I suppose, from one second,
Charchit Malu. Let's close the session, I suppose. Thanks for staying with us through today's call. If today taught us anything, it is that even platforms can have a market correction. And a special thanks to our platform for keeping us on our toes. We are back on track, and so that is the market. So I now invite the company secretary and compliance officer, Mr. Mandar Desai, to sort of close the session. Thank you. Thank you, Aryanji. Thank you all to all speakers and participants. We look forward to interacting again in the next quarterly vision dialogue. Thank you and have a good day. Thank you all. All right. So that concludes this vision quarterly vision dialogue. Stay with us. Thank you so much for joining us. Thank you.